صادق آباد میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ کیا ہوا؟ حملے سے پہلے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ کیمپ سے ماچکا تھانے واپسی پر گاڑی کیچڑ میں پھنس گئی۔ 1.5 گھنٹے تک رابطے کے باوجود کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ اندھیرا ہوا تو اہلکاروں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا، یہاں دن میں کوئی نہیں آتا، ہم رات میں پھنسے ہیں، شاید آخری وقت آ پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اہلکاروں کی باتیں سچ ثابت ہو گئیں۔ ڈاکوؤں نے کیچڑ میں پھنسے اہلکاروں پر راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ حملے میں 12 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ 8 اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمی اہلکاروں نے بتایا، ڈاکو گھات لگائے بیٹھے تھے، ہم نے جوابی کارروائی کی لیکن ہمارے کافی جوان شہید ہو چکے تھے۔ گنے کی فصل میں کئی ایکڑ تک کرالنگ کر کے جان بچائی۔ شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی پنجاب، پولیس افسران اور لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے رحیم یار خان میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ کہا، پولیس نے حملے کا بھرپور جواب دیا، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، سخت حکمت عملی سے ڈاکوؤں کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ شہید اہلکاروں کو تمغہ شجاعت دیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں، ہم نے ان کے ٹھکانوں کا پتہ لگا لیا، پولیس اہلکاروں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ شہید اہلکار زاہد اور منیر آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شہیدوں کو آخری سلام کرنے پہنچی۔ پولیس پر حملے کے بعد ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ جوابی کارروائی میں مرکزی ملزم بشیر شر مارا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے، ڈاکو بشیر شر کے 2 ساتھی نصیر اور مینا زخمی ہوئے۔ پنجاب حکومت نے کچے کے ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر خطرناک ڈاکو کی گرفتاری پر 50 اور 25 لاکھ روپے انعام مقرر۔ مریم نواز نے کہا، پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اور سندھ کے کچے میں بڑی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دونوں صوبوں کی پولیس اور رینجرز مشترکہ کارروائیاں کریں گی۔ زمینی اور دریائی علاقوں میں بیک وقت آپریشن ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے جلسہ ملتوی کرنے کی وجہ بتا دی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، معلومات دی گئی کہ دینی جماعتیں احتجاج پر ہیں، انتشار کا خدشہ ہے۔ اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کو بلا کر ملاقات کی اور جلسہ ملتوی کیا۔ جلسہ ملتوی نہ کرتا تو خدشہ تھا ایک اور 9 مئی بنا کر پی ٹی آئی کے گلے ڈال دیا جاتا۔ جلسہ آخری بار ملتوی کیا ہے۔ 8 ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حکومت کی ایک طرف چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کی گیم، جبکہ دوسری جانب عدالت میں سینیورٹی کو متاثر کرنے کی پلاننگ ہے۔ ملک میں کبھی انتشار نہیں چاہوں گا، بڑی جماعت کا سربراہ ہوں، اسی لیے فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ علیمہ خان کہتی ہیں، بانی پی ٹی آئی نے کہا انہیں جلسہ منسوخ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بانی نے کہا، لوگوں کو کہہ رہا ہوں جلسہ منسوخی کا سنیں تو آپ نے اب نہیں ماننا۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں، آخری وقت میں جلسے کا NOC منسوخ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے تصادم سے بچنے کے لیے جلسہ منسوخ کیا۔ انہوں نے ایک اور موقع دیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ بانی پی ٹی آئی صرف سیاستدان ہوتے تو جلسہ منسوخ نہ کرتے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد نے نئی حکمت عملی پر غور شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے پر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے، قائمہ کمیٹیاں چھوڑنے کی تجویز حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات جاری۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہیں۔ معیشت کے لیے انتہائی اہم اداروں کے بورڈ کی تشکیل فوری کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ اسمیڈا بورڈ کے غیر فعال ہونے پر اظہار برہمی۔ کہا، اسمیڈا کے CEO کی فوری تعیناتی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی میں نجی شعبے سے متعلقہ لوگوں کو بھی شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم کی صنعتوں میں سب کانٹریکٹنگ کو فروغ دینے کی ہدایت۔ پاکستان صرف 40 خاندانوں کا نہیں، 40 خاندانوں کو بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا، پاکستان کا ہر گھر بجلی کی وجہ سے پریشان ہے۔ صنعتیں بند ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ بجلی کی قیمتوں کا ہے۔
1 लाख करोड़ रुपए IPPs को मुफ्त दिए जा रहे हैं। IPPs से ऐसे मुआहदे किए गए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए। ऐसे मुआहदे पाकिस्तान की इकोनॉमी से खून चूस रहे हैं। दुनिया में फी यूनिट 7 से 9 सेंट तक रेट है। पाकिस्तानी सार्फिन सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। 80 रुपए फी यूनिट तक बिजली दी जा रही है। IPPs के साथ मुआहिदों को यकतरफा खत्म या तब्दील नहीं करेंगे। हुकूमत IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रही है। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी का इंटरव्यू, कहा बाहमी रजामंदी से IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जा रही है। 2 माह में IPPs पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। मामले पर बैंड बाजा ज्यादा नहीं बजा सकते, जिससे जो मुआहिदा किया है उससे हटा नहीं जा सकता। IMF के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश करने लगा। वज़ीर खजाना की CEO दुबई इस्लामिक बैंक से ऑनलाइन मीटिंग हुई। ज़राए का कहना है पाकिस्तान दुबई इस्लामिक बैंक और दीगर बैंकों से $4 अरब के कमर्शियल कर्जे हासिल करना चाहता है। बैंकों से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बातचीत जारी है। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को बैरूनी ज़राए से $12 अरब जमा करने हैं। कराची चैम्बर के तमाम जो भी मेंबरान हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 28 अगस्त को कराची चैम्बर का साथ दें और हड़ताल में उनका हिस्सा दें। कराची चैम्बर की ताजर दोस्त स्कीम की मुखालिफत, शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख की 28 अगस्त को कारोबार बंद रखने की अपील। कहा कराची चैम्बर के अरकान 28 अगस्त को कारोबार मुकम्मल बंद रखें। टैक्स नोटिसेज हिरासा करने का सबब बन गए हैं। यकीन दहानी करवाई गई थी। 1000 से 1200 रुपए तक का टैक्स आयद किया जाएगा। 60,000 रुपए के मुतालबे की मजम्मत करते हैं। वजारत खजाना के टैक्सों से वजारत तिजारत भी मुत्तफिक नहीं। वफाकी वजीर जाम कमाल का कहना है 28 अगस्त की हड़ताल ताजरों का हक है। वफाकी वजीर ने ताजरों को मशवरा दिया हड़ताल के बाद हुकूमत से बैठकर बात करें। वजीर आजम ने इस हवाले से स्टेक होल्डर से मुशावरत की। आइंदा 2 हफ्तों में टैरिफ बोर्ड पर ऐलान करेंगे। आजाद तिजारती मुआहदे मुल्क की फेवर में नहीं थे। बहुत से मुआहदों से तवाजुन खराब हुआ। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत के पास यूटिलिटी स्टोर चलाने की रकम नहीं। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने बताया वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद टाइमलाइन के मुताबिक स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने बताया वफाकी हुकूमत ने इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दिया। फैसले से 11,000 से जायद मुलाजिम बेरोजगार हो सकते हैं। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत से फौरी तौर पर अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा। लोगों को उठाया जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल और वजीर आजम से मामला देखने की गुजारिश की गई, मगर इस मामले का जरा बराबर भी एहसास नहीं। दे डोंट केयर डैम अबाउट इट। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के असर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा हुकूमत को मरवजा तरीकेकार पर अमल नहीं करना तो क्या कह सकते हैं। लगता है हुकूमत जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। 2 माह से 2 बंदे लापता हैं। अंदाजा है खानदान पर क्या गुजर रही होगी। एसपी ने बताया सीसीटीवी का रेजोल्यूशन कम होने की वजह से नादरा और फॉरेंसिक एजेंसी से कुछ पता नहीं चल सका। अदालत की सरबराह JIT एसपी लाहौर को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत मंगल तक मुलतवी। कारसाज हादसा, बाप बेटी को कुचलने से पहले मुलजिमा ने सफेद कार और मोटरसाइकिल सवारों को भी हिट किया। वाकये से जुड़ी एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस का कहना है गाड़ी और मोटरसाइकिल को हिट करने के बाद मुलजिमा गाड़ी भगाते हुए फरार हुई। मुलजिमा ने आगे जाकर बाप बेटी को हिट किया और उनसे आगे जाने वाली गाड़ी को भी हिट किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कारसाज हादसे की मुतासरा फैमिली के साथ खड़े हैं। हादसे की जिम्मेदार खातून के शौहर मुतासरा फैमिली के घर जाकर माफी मांगे। लाहौर में दोस्त ने दोस्त की बेटी कत्ल कर दी। बाटापुर की 5 साल की फजर 10 अगस्त को लापता हुई। मुलजिम काशिफ तावान मांगता रहा। वालिद के साथ मिलकर बच्ची को तलाश भी करता रहा। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबर से मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची को कत्ल करने का इतराफ कर लिया।
निशानदही पर बच्ची के कपड़े, बाल और हड्डियां बरामद। फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। मुलजिम ने बच्ची को अगवा के आधे घंटे में ही कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद भी दोस्त को फोन करके तावान मांगता रहा। महकमा तालीम सिंध ने चेहलों में इमाम हुसैन पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स और कॉलेजेस पीर 26 अगस्त को बंद रहेंगे। भरने वाला ही नहीं है। हार्ट की मरीज जो पेशेंट हो भर नहीं सकते, लंगड़ाते भरती पानी। कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, कोई हमको किसके पास हम जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान। जमशेद रोड में पानी की किल्लत की वजह से शहरी परेशान है। पाइप लाइन की मरम्मत की वजह से 5 दिन से पानी बंद। इलाका मकीन मस्जिदों से बोरिंग का पानी भरने पर मजबूर। धाबेजी में 5 रोज पहले फटने वाली 2 लाइनों में से एक की मरम्मत में मजीद 2 दिन लगेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जंबो जंप में छलांगे। सफारी पार्क जंबो जंप का इफ्तिताह करने आए तो बच्चा बन गए। स्लाइड के मजे भी लिए। राजनपुर में कोहे सलेमान पर बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही। दर्जनों देहात का शहरों से राबता मुनक़ता। कोट मिठन के इलाके में मुरगाई टावर के करीब रोद कोही सैलाब से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल, मकीनों को मुश्किलात। दरियाई सिंध के बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर 10 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इतवार से जुमेरात तक कराची और अंदरूनी सिंध में बारिश का इम्कान। हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी में 2.5 साल की बच्ची पोलियो का शिकार। DHO के मुताबिक बच्ची की वैक्सीनेशन मुकम्मल है। बच्ची ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। बलूचिस्तान के इलाकों पशीन, कला अब्दुल्ला, चमन में इंसदादे पोलियो के कतरे ना पिलाए जाने का इंकशाफ। पोलियो वर्कर्स कतरे पिलाए बगैर उंगलियों पर निशानात लगाने में मुलव्वस पाए गए। 500 रजाकारों के खिलाफ कार्रवाई। 74 को फारिग कर दिया गया। उनको जब सारे मुसाफिर की स्क्रीनिंग हो रही थी, उनको सस्पेक्ट लेबल किया। पेशेंट को हमने ट्रांसफर किया पुलिस हॉस्पिटल पेशावर आइसोलेशन के लिए, और उसके बाद उनका सैंपल भेजा गया PCR के थ्रू। एमपॉक्स कंफर्म किया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से अलामात के साथ आया था। पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने बरवक्त अस्पताल मुंतकिल किया। टेस्ट मुस्बत आया। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 14 साल के मरीज में वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल कोंगो वायरस का 23वां केस रिपोर्ट हुआ। कोंगो के बाइस 5 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। अभी वो C-130 वहाँ जा रहा है। 12 बजे के बाद रात को आएगा। उसकी लैंडिंग जैकोबाद में। एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पे बवाली है। जो जख्मी है उनको शिफ्ट करना था कराची। ईरान बस हादसे में जाम बहक ज़ायरीन की नमाज़ जनाजा यज़्द एयरपोर्ट पर अदा कर दी गई। खुसूसी तैयारा ज़ायरीन के मैयतों और जख्मियों को लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। सूबाई वजीर नासिर शाह ने बताया C-130 तैयारा रात को जेकबाबाद एयरबेस पर लैंड करेगा। जख्मियों को फौरी कराची मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया। नेपाल में भारतीय शहरियों की बस दरिया में गिर गई। हादसे में 14 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बस में 45 अफराद सवार थे। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन वजीर बराए इक्तिसादी ताउन और तरक्की की वफ्द के साथ मुलाकात। मरीम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91 मिलियन यूरो इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने GSP+ स्टेटस के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहा। मरीम नवाज का कहना था मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। पहली बार माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया गया। ऑलराउंडर शकीबुल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम को हंगामों के दौरान कत्ल किया गया। मकतूल के वालिद के मुताबिक शकीबुल हसन इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए मुकदमा किया। शकीबुल हसन हसीना वाजिद की पालकी के रहनुमा और पार्लियामेंट मेंबर थे। मोदी सरकार मुसलमान दुश्मनी में अंधी हो गई। तौहीन रसालत के मुर्तकिब पंडित रामगिरी महाराज के खिलाफ एक्शन के बजाय मुस्लिम रहनुमा का घर मिसमार कर दिया। वाकया रियासत मध्य प्रदेश में पेश आया। साबिक कांग्रेस रहनुमा हाजी शहजाद अली के घर पर बिल्डोजर चला दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते पंडित रामगिरी इस्लाम मुखालिफ बयान और शान रसालत में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ था।
पुलिस ने एहतजाज करने पर उल्टा 150 मुस्लिम मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इंडोनेशिया में इलेक्शन कवानीन में मुजव्विजा तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया, बाड़ तोड़ दी, टायर जलाए और पार्लियामेंट के अंदर पेट्रोल बम फेंके। पुलिस पर भी पथराव, पुलिस ने आंसू गैस और पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। अवाम का गुस्सा देखकर अरकान पार्लियामेंट ने तरमीम की तौसीक मुलतवी कर दी। मुजव्विजा तरमीम कानून का हिस्सा बनने से सदर के सियासी असर रसूख में इजाफा हो सकता है। गजा में इसराइली जाहरियत को 10 माह गुजर गए लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी जंग बंदी न करा सकी। इसराइल की वहशियाना बमबारी ने 90% आबादी को दरबदर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इतनी बड़ी आबादी की बेदखली के बायस सेहत के बहरान ने जन्म ले लिया। इसराइली फोर्सेस के खान यूनिस में बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद हुए। जुनूबी गजा में बमबारी में बच्चे समेत 4 फलस्तीनी जान से गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इसराइली वफ़द काहिरा पहुंच गया। कैमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। नायब सदर के लिए टिम वॉल्स को मुंतखब कर लिया गया। शिकागो में पार्टी कन्वेंशन से खिताब में कैमला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आजाद कर देंगे। गजा में जंग बंदी का वक्त आ गया है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी रोज भी फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा किया गया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको सरहद पहुंच गए। अपने दौरे हुकूमत में सरहद पर तामीर की गई दीवार का जायजा लिया। बॉर्डर पर खिताब में बाइडेन हैरिस इंतजामिया पर तनकीद की। कहा, डेमोक्रेट्स ओपन बॉर्डर चाहते हैं, इसीलिए दीवार मुकम्मल होने नहीं दी। कैमला हैरिस की नाअहली के बायस अमेरिका को इमिग्रेशन बहरान का सामना है। कैमला हैरिस की ओपन बॉर्डर पॉलिसी के बायस जराइम पेशा अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। इलेक्शन जीत कर मुल्क की सरहद को मजबूत बनाएंगे। थाईलैंड के रुकने पार्लियामेंट को खातून रिपोर्टर के सवाल पूछने पर गुस्सा आ गया। थप्पड़ बरसा दिए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 79 साल के साबिक आर्मी चीफ हैं। रूसी सदर प्यूटिन को चीचनिया की मस्जिद में कुरान पाक के नादिर नुस्खे का तोहफा। प्यूटिन ने एहतरामन कुरान पाक को चूमा और फिर सीने से लगाया। चीचनिया के मुफ्ती आजम ने रूसी सदर को सूरह अनफाल की आयत पढ़कर सुनाई और उसका रूसी जुबान में तर्जुमा भी किया। मक्का मुकरमा और मदीना में मुसलसल दूसरे रोज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम समेत शहर भर में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। उमरा ज़ारीन ने बाराने रहमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी। बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी 53 रन पर पवेलियन लौट गए। नसीम शाह और खुरम शहजाद की एक विकेट। बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स बगैर किसी नुकसान के 27 रन से दोबारा शुरू की थी। मैच ए स्पोर्ट्स और यावाइजात पर बराह रास्त देखा जा सकता है। गोल ऐसा कि सब तारीफ करें। सऊदी प्रो लीग में सुपरस्टार फुटबॉलर रोनाल्डो के गोल के चर्चे। कॉर्नर की हिट पर 4 फीट ऊंची जंप लगाई। ऐसा हेडर मारा कि फेंडर और कीपर सब बेबस हो गए। और कमाल की फुर्ती, बला की तेजी। मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खातून फाइटर्स ने तारीख रकम कर दी। बानो भट्ट ने काजिक फाइटर पर मुक्कों की बरसात की। इवेंट के तारीख में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। बानो कामयाबी के ऐलान पर खुशी से रो पड़ी। तराना भी गूंज उठा। इमरान खान ने पाकिस्तान को दूसरा सोने का तमगा दिलाया। सीनियर फ्लाई वेट कैटेगरी में हरीफ को नॉकआउट किया। बुशरा अहमद ने सिल्वर मेडल जीता। मर्दों में जिशान अकबर, अब्दुल मन्नान और शहाब अली भी सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हुए। इवेंट में ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान 7-7 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त रहे। तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और ARS ऐप पर बराह रास्त दिखाए गए।